मेरे रहना अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट भी कर देना और जो रेड बटन उसको प्रेस कर देना। आज मैं अपने डेंटिस्ट के पास आई हूँ अपने 30 रेगुलर चेक करवाने। चलो मैं आपको मिलवा दूँ। Good morning, doctor. Good morning. How are you? Fine. Azura? Hello, sir. हेलो। Please meet my doctor. Hello, this is Dr. Mayank. Dr. Mayank Nagpal. I'm a periodontist and implantologist. And she came for the consultation. She is having a bit of pain and some cavity. She is complaining of food lodgement over there. So we are checking what it is actually, and we'll let you know. Okay. Okay. चलो, सिर पीछे रखो। She's having cavities in her molars, in both the molars, lower arch. There is spacing. So we have to take care of these teeth because when we eat so much of junk food, fast food, chocolates, especially kids are fond of chocolates. So we have to take care of them so that these teeth should not get decayed because they will erupt at the age of around 10 to 11 years. So we have to save these teeth till that time. And the cavity, we have to remove those cavity as soon as possible because otherwise it will cause pain. Initially it will not cause pain because the cavity has not reached to the end of the pulp, but when it reaches the pulp we have to go for pulpectomy in kids. It is different from the root canal, but we have to do the pulpectomy or pulpotomy. There are two options. It depends on the condition that we have to go for. Right now in her condition we have to remove the cavity and do the filling. That's it. So but we have, every single kid should know how to brush their teeth. You have to brush twice a day, clean your teeth, rinse after every meal, avoid junk food. Even if you are eating some, rinse actually remove all the food lodgement that are present in the mouth, in between the teeth. So that is the funda for kids. Okay. So you are having pain anywhere? No. No. Okay. One should come to the dentist after every 6 months for a regular routine checkup because cavity usually does not reach to the pulp till the time in between that period, and it will be helpful for the kid only and for the patient only that if they go for the filling, that will be less expensive. That will be cheaper cost. It will cost 400, 500 to 800 rupees. But if she has to go for root canal, it will cost 2500, 3000 or even much more than that. And then after capping, so it is better to come for a routine regular checkup so that the price will also go down. It will be less traumatic. So what we are doing right now, it will be completely painless, and we'll see how we continue. Okay. अब आपका ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है? आपकी फीलिंग हो गई है, आपको कोई पेन तो नहीं हुआ? नहीं। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। अब आप मेरे डॉक्टर को समझाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। अब आपको ब्रशिंग कैसे करनी है? आप सर्कल बनाते हो? हाँ। तो आपको क्या करना है? आपको टूथब्रश लेना है, आपने एक बड़ा सर्कल बनाना है, फिर छोटा सर्कल, फिर और छोटा सर्कल, फिर और छोटा सर्कल करते करते ऐसे आपने टीथ के ऊपर रखना है और ऐसे सर्कल सर्कल, यहाँ पे भी आपने सर्कल सर्कल करना है, आपने इधर भी सर्कल सर्कल करना है,
ऐसे सर्कल सर्कल करके आपको सॉफ्ट हैंड से ब्रशिंग करनी है। ओके, आपको ब्रश करते हुए प्रेशर नहीं देना है। फिर इस तरफ करना है आपने, ऐसे सर्कल 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 और मिरर में देखते हुए। ओके, फिर क्या करना है आपको माउथ ओपन करना है। आपको ब्रश को ऐसे रखना है अंदर की साइड से, ऐसे ऐसे क्लीन करना है। राइट, ब्रश ऐसे रख के ऐसे, ऐसे रख के ऐसे, ऐसे रख के ऐसे, सेम फ्रॉम द अपर टीथ, ऐसे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमारे बाहर से भी टीथ क्लीन हो गए, अब हमारे अंदर से भी क्लीन हो गए। और इस साइड से ऐसे और ऐसे। अब जहाँ पे हमारी कैविटी लगती है वो कहाँ लगती है, यहाँ पे। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, कैविटी। तो हमने इस वाले सरफेस को कैसे क्लीन करना है, हमने ब्रश को ऐसे रख के ऐसे, सो डैट यहाँ पे जो भी हमने खाया है उसके कारण जो भी डिपॉजिट हुआ है वो सब बाहर निकल जाए और कैविटी नहीं लगेगी। ऐसे इधर से, ऐसे इधर से और इधर से। फिर माउथ क्लोज अच्छे से रिंस करना है। ठीक है, और हमेशा जब भी हम ब्रश कर रहे हैं हमें टंग हमेशा क्लीन करनी है। राइट, टंग इससे क्लीन करनी है आपको, नहीं तो टंग का एक टंग थ्रस्ट आता है जिससे हम टंग को क्लीन करते हैं। टंग का एक ब्रश आता है। ओके, आप उसको यूज करके टंग क्लीन करनी है, क्योंकि टंग के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया डिपॉजिट हो जाते हैं। वो हमारे अंदर भी जाते हैं और स्टमक को भी नुकसान पहुंचाते हैं, प्लस वो बाद में टंग से टीथ के ऊपर आ जाते हैं और टीथ को खराब कर देते हैं। ओके, ये क्या लगा हुआ है? ये दांत में कीड़ा लगा हुआ जैसे आपके टीथ में था। नीचे जब दांत में कीड़ा लगता है, जैसे इस टीथ के अंदर है, अगर कीड़ा लगा है और वो नर्व तक नहीं पहुंचा है तो हम कीड़े को रिमूव करके फिलिंग कर सकते हैं। अगर वो कीड़ा नर्व तक पहुंच जाता है तो नीचे वो पस बना देता है, तो फिर हमें रूट कैनाल करनी पड़ती है। ओके, तो इसलिए जब हम ब्रशिंग अच्छे से करेंगे तो कीड़ा लगेगा ही नहीं, सारा कुछ क्लीन रहेगा, तो हमें कभी पेन भी नहीं होगा। और कितने टाइम ब्रश करना है? 2 टाइम्स। कब कब? गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। गुड नाइट पे। ओके, थैंक यू। ये ब्रश मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, आपको इससे ब्रश करना है। ये पावर ब्रश है, जैसे ये ब्रश है, आपने इसका बटन क्लिक किया, ये राउंड राउंड घूम रहा है, इससे आपके टीथ क्लीन हो जाएंगे। और आपने इसको क्लिक करना है, ये बंद हो जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू डॉक्टर। सो मोस्ट वेलकम बेबी। देखो फ्रेंड्स, आप डॉक्टर ने आपको और मुझे कितना अच्छा समझाया। तो अब से हम प्रॉमिस करते हैं कि सारे हम 2 टाइम ब्रश करेंगे, एक तो गुड मॉर्निंग में, एक तो गुड नाइट में। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट भी कर देना और जो रेड बटन है उसको प्रेस कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी कर देना।